پودانے میں اور ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا نور کی کشتی ڈوب جانے میں. ذرا سا فاصلہ تھا نور کی کشتی ڈوب جانے میں. کسر باقی نہ رکھی بس نیم کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پہلی زمانے میں. میرے آقا کا وہ مقام اور مرتبہ ہے پیارے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاکدانی کی پر تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کا حال بڑا پرفتن تھا. جہاں پر بیٹیوں کو زندہ گاڑا جا رہا تھا, بیٹیوں کو زندہ تربور کیا جا رہا تھا, لیکن جب آخری نبی آیا تو گلنے والی بیٹیوں کو مجھ حق اور مجھ جافزہ سننے کو ملا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. کیونکہ کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ چاہے آنکھ کی روشنی ہو یا اندھیرا ہو تو کسی اور چیز اجالے کی ضرورت پڑتی ہو. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو روشنی کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے رب ارشاد فرماتا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, اور نور کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں نور ہوگا پھر وہاں ظلمت نہیں ہوگی, پھر وہاں اندھیرا نہیں ہوگا. وہاں نور جہاں ہوگا وہاں روشنی ہی روشنی ہوگی. نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے کے اپوزٹ ہوا کرتا ہے, وہ اندھیرے کو ٹکنے نہیں دیتا ہے. جہاں پر نور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے نور فرمایا, اور وہ نور کس طرح اپنی روشنیوں کو بکھیرتا ہوا رہا ہے. میں آپ کو زیادہ لمبا نہیں لے جاؤں گا, لیکن سرکار کی سیرت طیبہ کے تعلق سے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. تھوڑا سی جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ. وہ حضرت آمنہ جو بڑی متقی اور پرہیزگار تھی, بڑی فارسہ تھی. حال یہ ہے کہ جب مدینہ سے ایک مرتبہ ایک ایسی عورت کا گزر ہوا جو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر تقدیر کا فیصلہ بتا دیا کرتی تھی. جب مدینہ سے لیلا کا گزر ہوا تو تمام عورتیں اکٹھا ہوئی, اور اکٹھا ہونے کے بعد کہا ہے لیلا ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھو اور ہماری تقدیر کے بارے میں بتاؤ. لیلا ہے کہ کر کے سب کی ہتھیلیوں کو دیکھتی جا رہی ہے, بتاتی جا رہی ہے. اسی میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. مدینہ کی عورتوں نے کہا ہے آمنہ تم بھی اپنا ہاتھ دکھا لو, تمہارے بارے میں بھی یہ بتا دے تمہارا مستقبل کیا ہے, تمہارا فیوچر کیا ہے. حضرت آمنہ ہے آخر میں اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے, اور بڑھانے کے بعد کہتی ہے لیلا میرے بارے میں بھی بتا دو. لیلا ہے جب حضرت آمنہ کے ہاتھ کو دیکھتی ہے تو کبھی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتی ہے, کبھی حضرت آمنہ کے چہرے کو دیکھتی ہے. عورتیں حیرت زدہ ہے اور فرماتی ہے لیلا ابھی تک تو جتنی عورتوں کا ہاتھ تو نے دیکھا فوراً اس کی قسمت کے بارے میں بتا دیا, اس کی تقدیر کے بارے میں بتا دیا, اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کا فیوچر کیا ہوگا, یہ آگے کیا کرنے والی ہے. لیکن آمنہ کے ہاتھ میں تجھے ایسا کیا نظر آ رہا ہے کہ کبھی آمنہ کی ہتھیلی کو دیکھتی ہے اور کبھی حضرت آمنہ کے چہرے کو دیکھتی ہے. لیلا وہ پکار اٹھی کہ عورتوں سنو, ابھی تک جن کی ہتھیلیوں کو میں نے دیکھا ان کی تقدیر کے بارے میں بتا دیا, لیکن جب میں آمنہ کی ہتھیلی کو دیکھتی ہوں تو میں حیرت زدہ ہوں کہ حضرت آمنہ کی ہتھیلی سے جو مجھے پتا چلتا ہے وہ یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی ہتھیلی دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں یا تو یہ کوئی نبی ہوگی یا تو کسی
माँ होंगी, इनकी हथेली से ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में किसी नबी की ये माँ होगी। अल्लाह अकबर। अभी आपका निकाह नहीं हुआ है, अभी आप इब्तिदाई जिंदगी गुजार रही है, लेकिन लैला बता रही है कि या तो ये कोई नबी होगी या तो किसी नबी की माँ होगी। अल्लाह अकबर। आपकी पारसाई का आलम ये है, आपके तकवे का आलम ये है कि इब्तिदा ही से बता रहे हैं, बताने वाले नुजूमी बता रहे हैं, खबर देने वाले खबर दे रहे हैं कि या तो किसी नबी की ये माँ होगी या तो ये नबूवत को पाएगी। अल्लाह अकबर। इधर हज़रत आमिना का हाल ये है और इस तरह हज़रत अब्दुल्ला का आलम ये है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में पादरियों को पता चल गया था कि मक्का शरीफ में एक शख्स पैदा होगा जिसके शिकम से, जिसके वतन से एक ऐसा लाल आएगा, हज़रत आमिना की गोद में एक ऐसा लाल पड़ेगा जो आखिरी पैगंबर होगा, जो आखिरी नबी होगा। पादरी इकट्ठा हुए, यहूदी इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने अपनी किताबों में देखा, देखने के बाद कहा, सुनो, जिस नबी के पैदाइश के बारे में हमारी किताबें बता रही हैं, उस नबी का बाप दुनिया में आ चुका है, मक्के में जन्म ले चुका है, वो मक्के की सरजमीन पर कदम रख चुका है। पादरी इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने कहा कि हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि जब ये नहीं रहेंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं आएंगे। लेकिन पादरी परेशान है कि आखिर अब्दुल्ला को कौन कत्ल करेगा, अब्दुल्ला को कौन कत्ल करने के लिए जाएगा। पादरियों ने कहा, सुनो, इतना इनाम रख दो कि जो अब्दुल्ला को कत्ल कर देगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा, उसके साथ पुश्ते बैठ कर खाएंगे, फिर भी खजाना कम नहीं होगा। चुनाच मशवरा करते हैं, एक नौजवान को तैयार करते हैं। नौजवान है, सफर करता हुआ मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है और मक्का में पहुंचने के बाद तवाफ करता है। तवाफ करने के बाद बैठ जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे को बुलाता है, कहा, सुनो, मुझे अब्दुल्ला से मुलाकात करना है, सरकार के वालिदे ग्रामी अब्दुल्ला, उनसे मुझे मुलाकात करना है। कहा, अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? कहा, आप मुसाफिर लगते हो। कहा, हाँ मुसाफिर हूँ। कहा, भूख भी लगी होगी? कहा, हाँ लगी है। कहा, प्यास भी लगी है? कहा, हाँ लगी है। कहा, पहले कुछ खा लो, पी लो, उसके बाद मैं अब्दुल्ला का पता बताता हूँ। अल्लाह ऊपर। वो बच्चा जाता है, कुछ खजूरें लेकर आता है, प्याले में पानी लेकर आता है, पानी पिलाता है, खजूरें खिलाता है। उसके बाद उस पादरी ने पूछा, मुझे अब्दुल्ला चाहिए, अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? कहा, बात क्या है? कहा, बात ये है कि पादरियों ने मुझे इस काम के लिए भेजा है और जब तुम मेरे ऐसा लगते हो कि हिमायती हो, इसलिए मैं तुमसे उस रात से पर्दा उठाता हूँ कि लोगों ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं अब्दुल्ला का सर काट के लेके आऊँ, मुझे अब्दुल्ला से मिलना है। चुनांचे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अपने सर को झुका देते हैं और इशाअत फरमाते हैं, पादरी, जिस मकसद के लिए तू आया है उस मकसद पर अपने अमल पैरा हो जा। जिस अब्दुल्ला को तू तलाश कर रहा है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं है, बल्कि वो अब्दुल्ला तेरे सामने मौजूद है। ये अब्दुल्ला ही की गर्दन है। चुनांचे अब्दुल्ला है, अपनी गर्दन को झुकाते हैं। उस पादरी ने तलवार निकाला और निकालने के बाद हजरत अब्दुल्ला के कदमों में तलवार को रख देता है और अपने सर को भी रख देता है और इशाअत फरमाता है, ए अब्दुल्ला, जिस सर को मैं लेने के लिए आया हूँ उस सर पर मैं अपने सर को कुर्बान कर रहा हूँ, उसके कदमों पे मैं अपने सर को कुर्बान कर रहा हूँ। इसलिए मैं सर लेने के लिए तो आया कर जरूर, लेकिन आपकी तवाज़ो देखकर, आपकी इंतज़ारी देखकर और आपकी परेशानी में नूरे मुस्तफा देखकर मैं आपके कदमों पे कुर्बान हो रहा हूँ। अब मैं कलमे से जवा पढ़कर आपका दीन कबूल करता हूँ। तो पता चला करे सरकार के वादे कराने का ये आलम है कि अगर लोग उन्हें देखते हैं तो कलमे से जवा पढ़ते हुए नजर आते हैं, कत्ल करने के लिए आए हैं मगर कदमों में सर रख देते हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में सर रख देते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे ग्रामी और वालिदा का ये आलम है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर, और ये नूर किस तरह आ रहा है? हजरत आमिना का हजरत
عبداللہ سے نکاح ہوا. اس کے بعد ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. 2 ماہ شکم مادر میں آپ کو آئے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے کہیں جاتے ہیں. جانے کے بعد کچھ دن گزر گئے, آپ واپس نہ آئے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے, آپ انتظار کر رہی ہیں کہ کب میرے سرتاج آئیں گے. چنانچہ جب کئی مہینے گزر گئے تو اس کے بعد کسی نے آنے والے نے بتایا, کہا اے آمنہ, جس عبداللہ کا تم انتظار کر رہی ہو, جس اپنے سرتاج کا تم انتظار کر رہی ہو, ان کا تو انتقال ہو چکا ہے, اب وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. ذرا پوچھو اس بیوی سے جس کے سر سے اس کے سرتاج کا سایہ اٹھ گیا ہو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا, اپنے شکم اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا, یہ بچہ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا, ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں, یہ تو یتیم ہو گیا. اللہ اکبر. 2 مہینے گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے, سرکار کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن ذرا سوچو تو پیارے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, کس طرح روشنیاں بکھیرتے ہوئے آ رہے ہیں. سرکار کے بارے میں سرکار ابھی شکم مادر میں ہے. کسی نے عبد المطلب سے کہا ہے, عبد المطلب تمہاری بہو حضرت آمنہ, جن کا معمول یہ ہے کہ ابھی شوہر کے انتقال کے کچھ ہی دن ہوئے ہیں, وہ خوشبو لگا کر مکے کی گلیوں میں چلتی ہیں, جبکہ اس دور کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو سال بھر تک اس کی بیوی کوئی خوشبو نہیں لگایا کرتی تھی, کوئی زیب و زینت نہیں کیا کرتی تھی. عورتوں نے کہا, اے عبد المطلب تمہاری بہو کو کیا ہو گیا ہے, ابھی سال بھر بھی نہیں ہوئے لیکن وہ خوشبو لگا کے چلتی رہتی ہے, وہ خوشبو لگاتی ہے, جہاں سے بھی گزرتی ہے خوشبو آتی رہتی ہے. سرکار کے والد, سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب کا سر جھک گیا, پلٹ کر واپس آئے. آنے کے بعد اپنی شریک حیات کو بلایا, کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں, آج میرا سر شرم سے جھک گیا. جو مکہ کی عورتوں نے مجھ سے کہا کیا بات ہے, کہا مکے کی عورتیں تانا دے رہی ہیں کہ تمہاری بہو ابھی تمہارے بیٹے کو 1 سال بھی انتقال کیے نہیں ہوئے, وہ خوشبو لگا کر مکے کی گلیوں میں چلتی ہے, وہ جہاں جاتی ہے خوشبو ہی خوشبو مہکتی رہتی ہے. چنانچہ بات کیا ہے, حضرت عبد المطلب جب اپنی شریک حیات سے کہتی وہ گئی, حضرت آمنہ سے کہا, بیٹی یہ میں کیا سن رہی ہوں, تم خوشبو لگاتی ہو, زیب و زینت کرتی ہو. حضرت آمنہ نے کہا, نہیں ماں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہا, بیٹی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تم خوشبو لگا کے جاتی ہو, گلیوں سے گزرتی ہو اور دور دور تک خوشبو جاتی ہے. کہا, اپنی جان بات یہ نہیں ہے. حضرت آمنہ جہاں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی وہاں کی مٹی اٹھاتی ہے اور مٹی اٹھانے کے بعد کہتی ہے, اے ماں یہ مٹی آپ سونگھو. چنانچہ جب اس مٹی کو اٹھا کر سونگھتی ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے. چنانچہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مائی نے کہا, حضرت عبد المطلب کی شریک حیات نے کہا, بیٹی بات کیا ہے, جس چیز کو تو ہاتھ لگاتی ہے اس سے خوشبو آنے لگتی ہے. حضرت آمنہ ہے, کہتی ہے میں بھی حیرت زدہ ہوں, اے امی جان آج میں بھی حیرت میں ہوں کہ جہاں میں قدم رکھتی ہوں وہاں سے خوشبو پھوٹ پڑتی ہے, جہاں سے میں گزرتی ہوں وہاں خوشبو آتی ہے. بات کیا ہے, حضرت آمنہ کہتی ہے, پہلے ایسا نہیں تھا لیکن جب سے یہ میرے شکم میں آیا ہے خوشبو جہاں سے میں گزرتی ہوں خوشبو بکھرتی ہوئی جاتی ہے, جن گلیوں سے میں گزرتی ہوں وہاں خوشبو پھیلتی ہوئی جاتی ہے, جہاں میں قدم رکھتی ہوں وہاں خوشبو پھیلتی ہوئی جاتی ہے. یہ ماں یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو میرے شکم میں آیا ہے یہ اس کی بدولت ہے, یہ اس کی وجہ سے خوشبو پھیل رہی ہے. چنانچہ عبد المطلب کو کوئی بلایا گیا, حضرت عبد المطلب بھی آتے ہیں اور آنے کے بعد اس مٹی کو جب سونگھتے ہیں تو مٹی مہک رہی ہے. اور سنو پیارے, وہ مٹی 1-2 دن نہیں, سال بھر نہیں, بلکہ جب تک وہ مٹی رہی وہ مہکتی رہی. حضرت آمنہ
शिकम में परवरिश पा रहा था। अल्लाह अकबर से आमना फरमाती है यही नहीं बल्कि जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं का पानी ऊपर आ जाता है, औरतें कुएं पर बैठकर मेरा इंतजार करती रहती है और कहती है आमना तू जल्दी आया कर और देर से जाया कर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बात क्या है? हजरत आमना कहती है ए अब्दुल मुत्तलिब बात ये है कि जब मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो पथरीली जमीन है, मैं पानी लेकर चलती हूँ और मेरे शिकम में बच्चा भी है, मैं चलती हूँ तो मुझे तकलीफ भी होती है, लेकिन आलम ये है इस शिकम में जब से ये बच्चा आया है जब मैं पत्थरों पर पैर रखती हूँ तो पत्थर पत्थर नहीं होते हैं बल्कि पत्थर मोम बन जाया करते हैं, मोम की तरफ पिघल जाया करते हैं। और जब मैं कुएं पर जाती हूँ तो कुएं पर डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब मैं कुएं पर पहुंचती हूँ तो डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है बल्कि पानी खुद ब खुद कुएं पर ऊपर आ जाता है और मैं खुद भर लेती हूँ और वहां पर जितनी भी औरतें होती है सब के सब पानी को भर लेती है। और वो फरमाती है आमना यहाँ तुम देर तक ठहरी रहा करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं वहां से चलती हूँ तो जो पानी ऊपर आ रहा होता है वो पानी फिर नीचे चला जाता है। तो पता चला अगर पानी ऊपर आ रहा है तो किसी और की वजह से नहीं बल्कि मेरे शिकम में जो नूरे मोहम्मदी आया है इसकी वजह से ये पानी खुद ही मेरा इस्तकबाल कर रहा है, ये पानी कुएं का ऊपर आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत का आलम है प्यारे, अभी दुनिया में कदम नहीं रखे हैं, माँ के शिकम में है, लेकिन मोजिज़ों का ज़हूर हो रहा है। कुएं पर जाती है तो पानी ऊपर आ जाता है, जब किसी रास्ते से गुजरती है तो पेड़ पौधे सलाम करते हैं। और सलाम किस तरह करते हैं? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या उम्मे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलामती हो तुम पर और उस नबी पर, ए मोहम्मद मुस्तफा की माँ। जरा सोचो तो प्यारे, उस दौर के पेड़ और पौधे हैं, हजरत आमिना को देखने के बाद सलाम पेश कर रहे हैं। तो अगर हमारा आशिके रसूल नबी के सामने सलातो सलाम पढ़े तो कोई नई बात नहीं है, बल्कि हजरत आमिना पर सलातो सलाम पढ़ा है उस दौर के पेड़ पौधों ने। तो पेड़ पौधों ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ा है तो हम आशिके रसूल सलाम क्यों ना पढ़े नबी पर, हम सलातो सलाम क्यों ना भेजे? तो पता चला कि हम और आप जो सलातो सलाम पढ़ते हैं ये पेड़ पौधों का यकीनन सुन्नत तरीका है जो उस दौर में पढ़ा गया था। हजरत आमना फरमाती है जब वो बच्चा मेरे शिकम में पढ़ता रहा और जब उसके पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप फरमाती हैं जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो ऐसा लग रहा था कि मेरे घर के आंगन में ये सितारे जमीन पर गिर पड़ेंगे, इतने करीब आ गए थे। और इससे आमना फरमाती है ऐसा नूर निकला, ऐसी रोशनी फूटी, जब पैदाइश का वक्त करीब हुआ तो ऐसा नूर निकला कि मैं बैठी तो थी मक्के में, लेकिन मिस्र और शाम के महलात मुझे नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम के बाजार में बिकने वाले ऊंटों की गर्दनों को मैं देख रही थी। मक्कातुल मुकर्रमा में बैठकर इतनी दूर तक मैं देखती रही। अल्लाह पर ये नूरे मुस्तफा का कमाल है प्यारे, ये नबी का मौजिज़ा है कि अभी माँ के शिकम से बाहर आ रहे हैं और माँ है मक्का में बैठकर मिस्र और शाम के बाजारों का नजारा कर रही है, मिस्र और शाम के महलात को देख रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा है प्यारे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर जब कदम रख के माँ के शिकम से बाहर आते हैं सबसे पहले जो काम करते हैं वो ये करते हैं जमीन पर मुट्ठी बांधकर मिट्टी लेते हैं, लेने के बाद उसे अपने पंजों में दबा लेते हैं। दबाने के बाद रावी बयान करते हैं कि सरकार ने पैदा होते ही जमीन की मिट्टी लेकर अपने हाथों में दबा लिया और दबाकर सरकार ने ये मैसेज और ये पैगाम दे
दिया, कहा सुन लो, अब किसी जालिम की चलने वाली नहीं है। अब यहाँ पर जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, अब बेटियों को गाड़ा नहीं जाएगा, अब बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, इसलिए कि आखिरी पैगंबर आ चुका है। अब जमीन पर अगर किसी की हुकूमत चलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत की चलेगी, अब जमीन पर अगर किसी की सल्तनत चलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत की चलेगी, आमिना के लाल की चलेगी, अब किसी जालिम की चलने वाली नहीं है। तो मेरे आका पैदा होते ही जमीन को अपनी मुट्ठी में लेकर फरमा रहे हैं कि सुन लो, अब जमीन पर किसी और का नहीं चलेगा, बल्कि अगर चलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की चलेगी, अगर हुक्मरानी चलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत की चलेगी। मेरे आका दुनिया में कदम रखते हैं और कदम रखते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मिट्टी को लिया, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे हबली उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो नबी जो दुनिया में कदम रखता है तो हमारी और आपकी बख्शिश के लिए दुआएं करता हुआ नजर आता है। और मेरे आका जहां जहां जाते हैं रोशनियां बिखेरते हुए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। ये नूर का मतलब होता है रोशनी के, और रोशनी का काम होता है जहां जाते अपनी रोशनियों को बिखेरते हुए जाते हैं। आमिना की गोद में आया, रोशन कर दिया, और हलीमा की गोद में गया तो हलीमा को भी रोशन कर दिया। वही हलीमा जिनकी गुर्बत का आलम यह है कि जिस ऊंट पर बैठ कर आप मक्कतुल मुकर्रमा आई थी, वो ऊंट सही से चल भी नहीं पा रहा था, बड़ा कमजोर ऊंट था। लेकिन जब वही हलीमा सादिया है मुस्तफा जाने रहमत को लेकर जब चलती है तो वही ऊंट है जो अभी तक कमजोर था, लेकिन अब उसमें ऐसी तवानाई और ताकत पैदा हो गई थी कि वही ऊंट जो सारे काफिले में सबसे पीछे पीछे चल रहा था, जब मुस्तफा जाने रहमत को हलीमा लेकर चलती है तो पीछे पीछे नहीं चलता है, बल्कि सारे काफिले के आगे आगे चल रहा है। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस लखते जिगर को लेकर जब हलीमा सादिया चलती है तो सबसे आगे आगे लेकर चल रही है। अल्लाह अकबर। जब अपने घर लेकर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जब उनके घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो रही थी तो मोहल्ले के तमाम औरतें इकट्ठा हुई एक दिन, और इकट्ठा होने के बाद हजरत हलीमा से कहा, हलीमा सादिया तू कितनी अमीर हो गई है। इसलिए कि बड़े बड़े अमीर भी रात में जब सोते हैं तो अपने चिरागों को बुझा दिया करते हैं, अपने दिए को बुझा दिया करते हैं। ये हलीमा तू कितनी अमीर हो गई है कि पूरी रात तेरे घर में चिराग जलता रहता है, पूरे रात तेरे घर से रोशनी फूटती रहती है। हजरत हलीमा है कहती है, तुम सच कहती हो, हाँ मेरे घर से रोशनी फूटती है, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं वो रोशनी कैसी है, वो चिराग कैसा है, वो नूर कैसा है। हजरत हलीमा सादिया है मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करने के बाद अपने घर लेकर जाती है। जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया है फरमाती है, ऐ मोहल्ले की औरतों सुन लो, वो नूर वो रोशनी जो मेरे घर से निकलती रहती है वो कोई और नहीं है, बल्कि इस नूर मुस्तफा की वो रोशनी है जो मेरे घर से चलती रहती है, जो मेरे घर से नूर और रोशनी निकलती रहती है। वो इसी मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की बरकत है, मुस्तफा जाने रहमत के नूर का फैजान है कि वो रोशनी निकलती रहती है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, औरतों सुनो, जिस दिन से ये मेरे घर में कदम रखा है, इस आखिरी नबी ने मेरे घर में कदम रखा है, उस दिन से मैंने चिरागों को बुझा दिया है, दियों को मैंने तोड़ दिया है। अब न मुझे चिराग की जरूरत है, न मुझे दिए की जरूरत है, इसलिए कि जब से मुस्तफा आ गए हैं अब मेरे घर में रोशनी ही रोशनी रहती है। अब मुझे चिरागों की जरूरत नहीं पड़ती है, अब मुझे दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरे मुस्तफा का करम है प्यारे, ये सरकार का मौजूदा है। जहां जाते हैं
अपनी रोशनियों को बिखेरते हुए जाते हैं, जहां जाते हैं आपकी रोशनियां बिखेरते हुए जा रही है। अल्लाह अकबर। नबी आए तो अंधेरे को छाटते हुए आते हैं, नबी आए तो जुल्म सितम को छाटते हुए आते हैं, और नबी आए तो करने वाली बेटियों को मुस्ते हक और मुस्ते जाफजा सुनने को मिला। उस नबी का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद वाला है। जिस नबी ने कदम दुनिया में रखा, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में कदम रखते हैं तो अबू लहब अपनी बांदी सुएबा को भेजता है, कहता जाओ देखो मेरे भाई अब्दुल्ला के घर में कौन आया है, अब्दुल्ला के कौन आया हुआ है, जाओ खबर लेकर आओ। सुलेबा आती है, सुएबा आती है, और आने के बाद उसने देखा कि अब्दुल्ला के लत्ते जिगर नूरे नजर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कदम रख चुके हैं। सुएबा दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है अबू लहब, तुम्हारे घर में भतीजा आया हुआ है। अबू लहब जो काफिर था, कुफ्र ही की हालत में मरा, इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए। जिसकी मजम्मत अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया हो, उस अबू लहब का आलम ये है, जब उसने अपने भतीजे के बारे में सुना तो फरमाया सुएबा जा तू आजाद है, उंगलियों का इशारा करता है और कहता है जा तू आजाद है। सुएबा ने जब इतना सुना तो सुएबा आजाद हो जाती है। वही अबू लहब है, जिंदगी गुजारता है, और जिंदगी गुजारने के बाद जब दुनिया से चला जाता है, जाने के बाद कुछ दिन गुजरते, 1 साल गुजरता है, सरकार के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख्वाब में मिले। उन्होंने अबू लहब से पूछा, ए अबू लहब, पता अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया, क्योंकि दुनिया में तूने बड़ा कुफ्र किया, अल्लाह उसके रसूल की बड़ी नाफरमानी की, और कुफ्र ही की हालत में मर भी तो गया। अल्लाह ने तेरे साथ क्या सुलूक किया, अल्लाह ने तेरे साथ क्या बर्ताव किया। अबू लहब ने कहा, मैं जहन्नम में चल रहा हूँ, ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है, दाएं भी आग है, बाएं भी आग है, लेकिन हाँ जब दोशंबा का दिन आता है तो उस दिन मेरे अज़ाब में तखफीफ कर दी जाती है। कहा अज़ाब में तखफीफ इस तरह कर दी जाती है, जब वो मुबारक दिन आता है, पीर का दिन, दोशंबा का दिन, जिस दिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में कदम रखते हैं, कहा जब वो दिन आता है तो उस दिन जिन 2 उंगलियों के इशारों से मैंने अपनी बांदी सुएबा को आजाद किया था, उस आजादी के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं 2 उंगलियों के जरिए से मुझे ठंडा पानी पिला देता है और मेरे अज़ाब में तकलीफ फरमा देता है। सिर्फ उस भतीजे के दुनिया में आने की खुशी में मैंने अपनी बांदी को आजाद किया था, उसका अल्लाह ने ये बदला दिया है कि उस दिन जब आता है तो मेरे अज़ाब में तकलीफ कर दिया जाता है, मुझे इन 2 उंगलियों से ठंडा पानी पिला दिया जाता है, बस मुझे इतना ही राहत दिया जाता है। जरा सोचो तो प्यारे, अबू लहब जैसा काफिर जो कुफ्र ही की हालत में मर गया, जिसने पूरी जिंदगी कुफ्र किया हो, लेकिन अपने भतीजे की खुशी में जब अपनी बांदी को आजाद किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे भी महरूम नहीं किया। काफिर का कोई भी आज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन याद रखो प्यारे, ये महफिल पाक और नबी की आमद की खुशी एक ऐसा मौका होता है कि अबू लहब काफिर जैसा अगर नबी की आमद पर खुश होकर अपनी बांदी को आजाद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे महरूम नहीं करता है। अगर जब वो काफिर था, लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, ए अबू लहब तू काफिर जरूर है, लेकिन मेरे नबी की आमद पर तूने खुशी जताई थी, और खुशी का बदला ये है कि तुझे जहन्नम में भी ठंडा पानी दिया जाएगा, उस दिन तेरे अज़ाब में तकलीफ कर दिया जाएगा। अल्लाह पर कुर्बान जाओ अपने नबी पर कि जिस नबी पर अगर अबू लहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अज़ाब में तकलीफ कर सकता है, तो हम औलाद तो आशिक़े रसूल है, हम तो दीवाने नबी है। अगर हम नबी की आमद पर खुशियां मनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें औलाद को कितना अता करेगा, उसका कोई शुमार भी नहीं कर सकता है, उसे कोई इहाते तहरीर में नहीं लाया जा सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत
काफिर को अता कर सकता है, अबू लहब जैसा काफिर को दे सकता है, तो हम और आप तो आशिक रसूल है, हम तो नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। अगर नबी की मोहब्बत में महफिल पाक करेंगे, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कितना अता फरमाएगा, हम और आप तो शुमार भी नहीं कर सकते हैं, उसे अहाते तहरीर में भी नहीं लाया जा सकता है। तो ये मेरे नबी का जश्न है प्यारे, इस जश्न में यकीनन जो भी शिरकत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे महरूम नहीं करता है, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम और मर्तबा है प्यारे कि जब सरकार दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब बेटियों को जिंदा गाड़ा जा रहा था, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, आप मुझे बताओ जब किसी बेटी को जिंदा गाड़ा गया होगा तो क्या उस बेटी ने किसी को पुकारा नहीं होगा? क्या उस बेटी ने रब की रबूबियत को आईना नहीं दिखाया होगा? क्या उस बेटी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं की होगी, मालिक किस जुर्म में मुझे गाड़ा जा रहा है, किस जुर्म में मुझे मारा जा रहा है? और याद रखो प्यारे, बेटियों का हिसाब तो ये होता है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैदान